very warm welcome. You're watching the News Hour special edition with me, Priya Behel. Today, there was a statement that came from Akhilesh Yadav that has set a lot of tongues wagging in political circles, not just in Uttar Pradesh or Maharashtra, but nationally as well. He said, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है. There are no sacrifices in politics. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav said this not once, not twice, but 3 times. Why did he say that? He was asked about his party's position in poll-bound Maharashtra. The Samajwadi Party seems to be running out of patience with allies in the Mahavikas Aghadi, especially with the Congress. Now, Akhilesh's lecture on sacrifice or tyag comes at a time when there is an ongoing tussle between the Samajwadi Party and the MVA over seat sharing. Only yesterday, Akhilesh Yadav's state unit chief Abu Azmi publicly expressed his frustration with the Aghadi for dilly-dallying on SP's long-pending demand of supporting 5 SP candidates. Abu Azmi also added that he does not want to face betrayal or dhoka for a 3rd time. He then went on to highlight the na-insafi, the injustice that MVA allies are meting out to his party in Maharashtra. Not just that, sources are also indicating that if Samajwadi Party is not given the 5 seats, they may not only contest solo, they could also field candidates as independents in 25 seats. And if this happens, it would hamper the prospects of Mahavikas Aghadi. So will the betrayal in Maharashtra lead to a bigger split in the INDIA? सर, महाराष्ट्र में पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो. हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको. तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे. जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें. अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो. लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है. राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है. क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं. बस मेरा कहना है कि जो भी करना जल्दी कर दीजिए. पिछले 2 टर्म का मुझे जो मुझे हुआ है, एहसास हुआ है, मैंने देखा है जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों ने हमारे को युति से अलग किया, वो अब नहीं होना चाहिए. इसलिए मेरी तैयारी पूरी है कि धोखा मुझे नहीं खाना है. आप खुद सोचिए ना कि सबने बात कर लिया, हमको बुला के बात करने में क्या दिक्कत थी. हमने जो 5 सीटें अनाउंस की, वो सीटें भी, उसमें से भी सीटें जो है अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीटें बिना हमको बुलाए हुए, तो हम तो कहेंगे ना कि कहीं कहीं नाइंसाफी है. Is it about betrayal? If it is, then who's the one betraying and who is getting betrayed? Or is this about badla or revenge? Is Samajwadi Party taking a revenge for what Congress did to it in Haryana by denying them the seats that they were asking in the recent assembly elections? What exactly does this mean for the alliance going forward, both in Maharashtra and nationally? To answer those and other questions, we are now joined by Radhika Khera of the BJP. She is the national spokesperson. Manish Bariyar, political analyst. Saif Khan, Congress leader. IP Singh of the Samajwadi Party, he is the national spokesperson. Chitranjan Gagan of the RJD also joins us on the broadcast. Sir, पहला सवाल तो आप ही से, IP सिंह जी, ये जो त्याग की बात की है अखिलेश जी ने, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जी, देखिए, महाराष्ट्र में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मजबूत है. महाराष्ट्र सदन में विधानसभा के अंदर हमारे 4 विधायक रहे हैं. आज भी हमारे 2 विधायक हैं. हमारी बड़ी तैयारी है और महाविकास अघाड़ी और हमारे इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो भी जरूरत थी, जिस तरह से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी खड़ी रही है. और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के अबू आजमी जी ने कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर हमारी बातें सुनी जाती हैं, अगर हमें सीटें दी जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा. अगर हमें सीटें नहीं दी जाती हैं तो हमारा जहां भी जिन जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, हम फ्रेंडली फाइट वहां करेंगे. और उन्होंने आप उस बात को भी आपने दिखाया कि राजनीति में सैक्रिफाइस की कोई स्थान नहीं होता है. बट यूपी में तो आपने कांग्रेस से सैक्रिफाइस ले लिया कि हमारे पिछले 2 चुनाव में महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के 2 चुनाव में हमें आखिरी समय तक होल्ड पे रखा गया और हमें सीटें नहीं दी गई। बट सर यूपी में तो आपने भी कांग्रेस के साथ यही किया ना, आपने वहां पे उनका बलिदान ले लिया। वो 5 सीट मांग रहे थे, आपने उनको 2 दी, वो भी जहां उनकी जमानत जब्त होने वाली थी। तो त्याग तो कांग्रेस से ले ही लिया आपने, वो भले ही करना नहीं चाह रहे हो। अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, आप सबको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ी है। हम कहीं 150 वोटों से हारे हैं, या 5 तो हमारे विधायक ही हैं, 5 हमारे विधायक सांसद हो गए, 5 तो हमारी ऐसे सीटें हैं। शेष सीटें जो 4 है उसमें हम कुछ वोटों से हारे हैं। हम वो सीट गठबंधन में कैसे दे देंगे? हम किसी गठबंधन में हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और उपचुनाव में गठबंधन नहीं होता, गठबंधन तो आम चुनाव में होता है। ओके, एक करके करते। सैफ खान जी, चुनाव में भीख थोड़ी मांग रहे हैं, पार्टी वहां दमखम के साथ खड़ी है और हमारे साथ। जी आईपी सिंह जी, लेट सैफ खान कम इन। आपने बोला भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए, वो क्यों नहीं दे रहे, आपका हक क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपको? जी सैफ जी। Okay, now I would like to address हमारे जो साथी हैं समाजवादी के, I would like to tell them that it is very clear that, you know, having a percentage of 0.7% if you compare it with 2019 elections, the SAPA or Samajwadi Party has a vote percentage of 0.7%. See, if like what happened is we had a lower percentage in UP and we got just 2 seats. We compromised. The world knows it. The India knows it. Right? The same thing SAPA needs to understand. Initially what SAPA is doing right now is कि बीच में कूद के अपनी पहले तो सीटें अनाउंस कर देते हैं. I think if you're being a part of a group or a alliance, you need to understand that. ठीक है? That is the really important part. I understand that all the parties are looking forward for more and more seats. You know, even if you talk about the Shinde right now, in the BJP, he's asking for 15 seats. हमारी तो सिर्फ 5 सीटों का डिस्प्यूट है अभी। सर बट वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बात कर रहे हैं ना। शिंदे जो हैं वो 15 सीट्स मांग रहे हैं। शिंदे सेना और बीजेपी के लीडर्स टाइम्स नाउ के न्यूज आवर स्पेशल एडिशन पर आकर नहीं बोल रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। I understand. Abu Azmi and Akhilesh are doing that. भीख मांगने की अभी जो बात की है, ये बिल्कुल है भीख मांगने वाली बात नहीं है। Every party has its own right and they would demand all the state parties, but having a percentage of 0.7%, like it happened with Congress in UP, we had a lower percentage and that is why we settled for lower seats. Why would we settle in otherwise? The party who just holds 0.7%, यानी 1,22,000 से 1,22,000 वोट्स भी नहीं है, उससे ज्यादा वोट नहीं। अगर हमें 5 सीट भी नहीं मिलती है और तो हम 15 सीट पर लड़ेंगे। वो दूसरों सर 0.7% वोट कह रहे हैं कांग्रेस आपके पास है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है उन सीटों पर। 1,22,000 वोट हैं आपके पास महाराष्ट्र में, 0.7%। आप लिस्ट चेक कर लीजिए। अरे भाई, और जो कुछ थे भी जो जीत के आए, उत्तर प्रदेश में क्या है आपको हमने 17 सीटें दे दिया लोकसभा का। साथ में आप उत्तर प्रदेश में आपके पास क्या था आप बताइए। बिल्कुल सर आपने उनको गाजियाबाद और खैर दिया था, एक में नंबर 4 थे, एक में कुछ 1200 के आसपास वोट आए थे पिछली बार कांग्रेस के। नहीं 1.5% वोट शेयर था। अगर इस तरह का जुबान लड़ाना लड़ाइए, हमारा इंडिया अलायंस सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जुबान लड़ाइए। इंडिया अलायंस और हमारे 2 विधायक हैं, हमारे 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में। कांग्रेस के कितने विधायक हैं? आपका एक विधायक उत्तर प्रदेश में है। सुनिए तो, आपका एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, 403 सीटें, वहां 288 सीटें। ओके, ऐसी बात मत करिए। अगाड़ी में सिर्फ बात नहीं है, शिवसेना भी है। नहीं मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए बनी थी, एमवीए असेंबली इलेक्शंस के लिए बनी थी। आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई हैं, आप मेरी बात सुनिए। इस चीज को हमें साथ में लेके चलना है, एक ऐसी पार्टी को वो करते हुए जो पार्टी देश को खा रही है। ये हमें ओके, वी कम बैक टू राधिका खेड़ा। गाड़ी की बात कर रहे हैं। डज बीजेपी नीड टू से और डू एनीथिंग? Nothing at all. You know, the so-called India Alliance, which claims to
stand united is already crumbling under the weight of internal power struggles and seat sharing squabbles. I think it's here evident on the kind of language, on the kind of fighting they're seeing their spokespersons also. You don't have to go on and talk about Akhilesh Yadav's ultimatum to the alliance in Maharashtra, which not only exposes the cracks that is, and also exposes that there is no mutual trust and no mutual respect. We've seen that in Madhya Pradesh also. How can we forget Akhilesh, Chudvaiya party, I don't know what all they had said to each other. Then we saw what happened in Uttar Pradesh, and we saw, when the Haryana results were coming out. But this was bound to happen. The way Congress was showing its arrogance after getting 99 seats, and those 99 seats that it got, because they were mere parasites. They were mere parasites who piggybacked on their alliance partners, and their votes increased and their share seats increased, whether it was in Uttar Pradesh. Otherwise, Congress party on its own, a party with only 2 MLAs in entire Uttar Pradesh, and getting more seats was not possible. It was only because of Akhilesh Yadav. So now if Akhilesh Yadav is demanding his pound of flesh, what is wrong with it? He is correct in his way. If you can piggyback on him and get seats in Uttar Pradesh, then the Congress should succumb to his pressure. But the top thing is that this entire alliance, the Indi Gadbandhan, whether you have Fahad Ahmed, who's from the Samajwadi Party, who is the state president of the Samajwadi youth wing, who's gone on to join Sharad Pawar now, they are basically only thirsty and hungry for power. They do not care. They have not cared about the people of Uttar Pradesh. They don't care about the people of Maharashtra. They don't care about the people of India. They only care about their power. They only care about their seat, for which they will go and resort to any means. But when you have lots of opposites working together, people who do not share the same ideology, this balloon was bound to burst. And we're seeing that happening today. How long could this balloon last? Well, you have this. These are the same people now. If you see Mr. Uddhav Thackeray, his father is the same person, Mr. Balasaheb Thackeray, who said that I will not let my party be Congress. If it becomes Congress or joins the Congress, I will shut shop. Now, Akhilesh Yadavji's father, Mulayam Singh Yadavji, he has always remained on this line, has always said that the Congress has always used ED, CBI against them, and they've always fought against the Congress. But now, for the lust of power, if they got to get the balloon was bound to burst, and it's there for everyone to see. हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अखिलेश वकीलेश छुटभैया नेता आपस में सर फोड़ना है, जो मर्जी करे. लेकिन ये बात तो साफ है कि इनकी जो सत्ता की भूख और लालच है, उसके चलते ये हर IP Singh ji, very interestingly, Radhika also mentioned what happened with Fahad. थोड़ा सा हमें समझाएंगे ये कैसा अलायंस है जहाँ पे एक पार्टी अपने घर में देखे. अरे भाई बीजेपी, अरे सर बीजेपी के घर के सवाल हम बीजेपी से पूछेंगे. देवेंद्र फडणवीस चार्टर प्लेन से अमित शाह जी से मिलने आते हैं. उसके बाद तो पैदल चल के आए बॉम्बे से सिंधे साहब. सर फडणवीस, IP Singh जी फडणवीस देखे, उसे महाआघाड़ी में झांकने की जरूरत नहीं है. सर लोकसभा में महाआघाड़ी के साथ IP Singh जी ये मजबूती के साथ जब आपका नेता जाके आप जिससे अलायंस ही कर रहे हैं उसी के साथ जाके टिकट ले लेता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फहाद जी की बात की राधिका खेड़ा जी ने, थोड़ा हमें भी समझाइए. नहीं, वो अपना देखे. हमारे गठबंधन में अगर कोई भी बातचीत होगी तो बैठ के हम स्टूडियो में थोड़ा तय करेंगे. यहाँ तो नरम गरम बातें. सर आपने अभी 7 मिनट पहले आपने स्टूडियो में बैठकर बोला कि अगर हमको 5 सीटें नहीं देंगे तो हम 15 में लड़ेंगे. आगे बढ़ेगा, और अगर कहीं बातचीत नहीं बन पाएगी वो सीटें हम फ्रेंडली फाइट करेंगे. अच्छा, कुछ सीटों पर हम जहां मजबूत रहेंगे. एक बात नोट कर लीजिए, जिस सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी वही चुनाव लड़ेगी. जहां सारी पार्टी पर सारी सीटों पर लड़ना चाहिए. हमने 288 सीटों पर बहुत कम सीटों पर अच्छा हम वही लड़ेंगे. ओके. चित्रंजन गगन जी, Samajwadi Party and Congress are speaking publicly. Abu Azmi has also spoken out publicly. In Jharkhand, RJD is saying कि हमसे तो पूछा ही नहीं, इन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया कांग्रेस और JMM में. तो क्या आपको भी लगता है कि जो पॉलिटिक्स में देयर आर नो सैक्रिफाइसेस वाली लाइन है, RJD भी उसमें भरोसा करती है? नहीं, देखिए, राजनीति में जो भी राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल चाहती है कि उसका विस्तार हो. लेकिन इतना जो है, अभी राधिका खेरा जी जो बोल रही थी, अब
इंडिया गठबंधन में क्या है, इसमें उनको झांकने की क्या जरूरत है? वो अपना हमें देखे। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई झांप तोप के कोई सौदेबाजी नहीं होती है। हम कोई जो है सो अपने एलआई पार्टी को जो है सो सीबीआई, ईडी और आईटी का भय दिखाकर उनको जो है सो प्रेशर में नहीं लाते हैं, या कोई प्रलोभन देकर नहीं लाते हैं। इसलिए अगर राधिका खेरा जी जो कर रही हैं, उनको देखना चाहिए कि एनडीए की क्या स्थिति है, एनडीए की पहले देखें। और सत्ता के लिए, सत्ता के भूख तो उनमें है, हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम जनता के हितों को लेकर, जनता के सवालों को लेकर हम जो है सो जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। और राधिका खेरा जी क्या बोलेंगी? इनके जो है सो अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने बिहार आकर बोला था कि मैं रीजनल पार्टी को समाप्त कर देना चाहता हूं, रीजनल पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित शाह जी ने कहा कि जैसे दरवाजे खिड़की सब बंद है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन उसके बाद में वही नीतीश कुमार के शरण में चले गए। और उसके बाद जो है सो नड्डा जी का भाषण कहाँ चला गया। और अब तक आप देख लीजिए, जो भी भाजपा के साथ रहा उसकी स्थिति क्या हुई, चाहे वह शिरोमणि अकाली दल हो, या शिवसेना के साथ जो उसका व्यवहार रहा हो, या जनता दल यू के साथ ही जो उसका व्यवहार रहा हो, जो भी पार्टी उसके साथ रहा, उसके साथ अब रामविलास जी के ही पार्टी जो लोजपा है, उसी में देख लीजिए घर में ही झंझट करवा दिए, भाई चाचा भतीजा में झगड़ा करवा दिए। तो सर, आप ही की पार्टी के मनोज झा जी थे ना जो कह रहे थे कि यूनिलैटरल डिसीजन ले रही है कांग्रेस, पब्लिक में बाइट दिया उन्होंने। ये इट्स नॉट अ क्लोज डोर स्टेटमेंट दैट वाज लीक्ड बाय सोर्सेज। देयर इज अ लीडर, द लेफ्ट लीडर्स हैव बीन सेइंग दैट कांग्रेस हैज बिकम एरोगेंट, इट ट्राइज टू पंच अबव इट्स वेट। उनकी जितनी औकात नहीं है, जितनी कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी वो सीटें मांगती है। नहीं, सुन लीजिए, माने मनोज झा जी ने कहा, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो आपके सामने है। नहीं, बट हुआ, he had to come out in the public and assert himself. पब्लिक, Nobody consulted him. मैंने कहा ना कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखते हैं, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं। और स्वाभाविक रूप से हर राजनीतिक दल चाहती है कि उसका विस्तार हो। नहीं, उसका विस्तार हो। हमने क्या, आप अखिलेश जी का बयान सुना रही थी, लेकिन अखिलेश जी के बयान का भावना तो आप नहीं बता रही हैं कि अखिलेश जी ने क्या कहा। अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा कि कहीं से भी उनको इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का मकसद नहीं है। तो जहां पर मान लीजिए कि जिस दल की स्थिति मजबूत है, जो एनडीए के उम्मीदवार को हरा सकता है, वहां पर वह दल जो है सो स्वाभाविक। ओके, सो मनीष वारियर जी, बात सीट की नहीं, बात जीत की है। And pardon me if I'm mispronouncing your surname because I'm not quite sure about that. No, it's quite okay. Okay, It is good. so in whose favor does this work? See, largely, if you see, this kind of a drama, especially in, in the India Alliance, it happens every time. It happens even within India, but I think it is generally not in media that much. But here it is like an open drama which happens. And every time you can see UP, you can see every state, Jharkhand, as you rightly pointed out. But I think I would agree with, the spokesperson of RJD that every party has a right to really move forward. I feel that this kind of a give and take, or you can say almost like you're trying to really put pressure on your allies. It happens in every, especially in state elections, Vidhan Sabha elections. And as you will see in Maharashtra, you cannot dismiss, Samajwadi Party as such. Because if not, they can't help. They have a nuisance value for sure that they can damage in some of the seats in Mumbai. I feel that some of the seats, 4, 5, 6 seats, they would have, because assembly elections are such that, 2,000 votes to 200 to 500 votes also it decides. I think that is what it gives them that bragging right. So even a 1 lakh vote concentrated in few constituencies can make a difference. But having said that, even, Mr. Chitranjan Gaganji is saying that what BJP was saying, what people of leaders, these kind of things are spoken during elections. And Mr. Lalu Prasad Yadav has spoken atrocious things about people, about different castes. So if you start going to what political leaders have said in various point of time, I think,
there will be a fight in the studio room itself. That's- if you start reminding, because he has spoken some really controversial. It's very things. interesting that you bring in Lalu Yadav and what has happened in the past, because that's also giving me a very nice segue to get into our second debate, which is about Lalu Yadav and what happened in Bihar. But before we move on to that, let's give our viewers an update, because Abu Azmi has tweeted, समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का अटूट अंग है। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी का साथ दिया है। इस वक्त 2 सीटें मिली हैं, इसके साथ दूसरी सीटों के लिए बातचीत जारी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की ताकत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें मौका दिया जाएगा। लेट्स होप दैट दीज टॉक्स हैपन बिहाइंड द सीन।